Hello everyone, so welcome back to Nuskrit and I welcome you to this second problem on DFS. So in this video, we will be doing another problem based on DFS. So the problem statement here is sum of path numbers, right? So what the problem statement is, let's try to understand that first. So basically we will be given a tree like always, right? And there will be a root node which will be given to us. So what we have to do is we actually have to calculate the sum of the digits formed by all the paths. We have to calculate the sum of all those digits. Like say for example, let's consider this path, this path. So this is one path, 379. This is one path. So this is making a digit. So let's like I have written in the right side, 379 is one digit which is being created with this path, right? Now next digit which can be formed is with using this path 314. So that's why I have written in the right side 314, right? Now the third path which is there in the tree is 315. So that is why I have written the third digit as 315. Now these three paths are actually creating three digits, right? Three numbers, right? These three paths from root to leaf, these three paths, they are creating three different numbers: 379, 314 and 315. Now I have to calculate the sum of these, all the digits formed by different paths. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में 379, 314, 315 का जो सम आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी एज 1008. सो हमें जो रिटर्न करना है वो 1008 एज एन आंसर रिटर्न करना है. बेसिकली सारे रूट टू लीफ पाथ से जो डिजिट बन रही है उन सारे डिजिट्स का हमें सम रिटर्न करना है. That's the problem statement. So I hope you are clear with the problem statement. Now let's try to figure out what we can do in this particular question and how we can apply actually DFS, right? चलिए इस बारे में हम बात करने की कोशिश करते हैं. तो पहले बिफोर मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, लेट्स ट्राई टू फर्स्ट कैलकुलेट सम बेसिक मैथ्स, राइट? थोड़ा मैथ्स सीखने की कोशिश करते हैं. नाउ लेट्स से वी आर गिवन थ्री डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है? लाइक 3 एक अलग से डिजिट गिवन है, 7 एक अलग डिजिट गिवन है एंड 9 एक अलग डिजिट गिवन है, राइट? अब मुझे इन तीन डिजिट से एक्चुअल में एक नंबर बनाना है. इन तीनों डिजिट्स को मिला करके मुझे एक नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है? एक नंबर फॉर्म करना है. तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? दैट इज द मैथमेटिक्स दैट वी नीड टू लर्न टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो अगर ये हमें करना आता है तो वी कैन थिंक अबाउट दिस. अब देखो करना क्या है. लेट्स से आप इनिशियली क्या करो, आप एक नंबर को अज्यूम करो a इज इक्वल टू 0. सो दिस इज आर नंबर. तो इस a इज इक्वल टू 0 से हमें a इज इक्वल टू 379 बनाना है, ठीक है? तो ये हमारा टारगेट है. तो व्हाट वी कैन डू इज, देखो सबसे पहले हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे इस a नंबर के साथ. तो दिस विल गिव मी 0. ये मेरे को देगा 0. और अगर इस 0 में मैं 3 को ऐड करूंगा, मीन्स पहले डिजिट को ऐड करूंगा, तो दिस इज गोइंग टू गिव मी 3. तो अभी तक मैंने इस a के अंदर 0 था, a के अंदर मैंने 3 को कवर कर लिया है, ठीक है? अभी क्या करना है, देखो अब मेरे पास जो एक्चुअल अब डिजिट बन गई है एट दिस पॉइंट इन टाइम, नाउ माई a हैज बिकम 3, ठीक है? नाउ माई a हैज बिकम 3. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस 3 विद 10, ठीक है? मैं इस 3 की मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 10 से एंड देन आई विल एड दिस 7. तो आप ध्यान से देखिए, 10 इंटू ए प्लस 3 किया, फिर 10 इंटू ए प्लस 7 कर रहे हैं, फिर 10 इंटू ए प्लस 9 कर रहे हैं. ईच टाइम वी आर अपडेटिंग आर ए वैल्यू. तो इनिशियली क्या था, a इज इक्वल टू 10 इंटू 0 प्लस 3, तो हमें 3 मिला. नेक्स्ट पॉइंट इन टाइम पे a हमारा 3 बन गया, तो 10 इंटू 3 विल गिव यू 30 एंड 30 प्लस 7 इज गोइंग टू बी 37. नाउ दिस 37 विल बी स्टोर्ड इन a. Now my a has become 37. Now I am going to calculate a again. Now what I am going to do here is 10 into 37, which is going to give me 370. Now I will add 9 into 370. So this is going to give me 379. And finally I am going to store this 379 value into this a variable. So my a was 0. Now after performing these three calculations, my a has become 379. So that is the procedure to calculate, to form a number from different digits. So I hope you are clear with this concept, right? It's just a basic maths, right? चलिए अगर इतना प्रोसीजर क्लियर है तो अब हम इस सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है? इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है हम उसकी तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं. नाउ लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू से. नाउ बेसिकली हम कर रहे क्या होंगे, हम इनिशियली नोड पे होंगे, रूट नोड पे, ठीक है? नाउ मेरी जो रूट नोड है दैट इज माई, लेट्स से रूट नंबर 3, ठीक है? नोड नंबर 3 इज माई इनिशियल रूट नोड. सो दिस इज माई रूट नोड, ठीक है? नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, मैं देखो क्या करूंगा, मैं बेसिकली जिस नोड पे अभी हूँ, ठीक है, उस नोड से जितने भी मेरे पास रूट से लेकर के लीफ तक के पाथ जा रहे होंगे, मैं एक पाथ सम नाम का वेरिएबल मेंटेन करके चलूंगा, ठीक है? मैं एक पाथ सम नाम का एक वेरिएबल को मेंटेन करके चलूंगा. इनिशियली माई पाथ सम विल बी 0. सो आई एम कंसिडरिंग 0 हियर.
ठीक है, कि जब मैं रूट नोड पे होऊंगा तो मैं रूट नोड पे अपने पाथ सम की वैल्यू जीरो कंसिडर करूंगा। ठीक है, कि अभी तक का जो मेरा पाथ सम है वो जीरो है। पाथ सम का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे, पाथ सम इंटू 10। देखो इनिशियली अभी मैंने क्या बताया था, एक वेरिएबल लूंगा ए नाम का, उसको जीरो कंसिडर कर रहा हूँ, वहां पे मैंने इस ए को किससे रिप्लेस कर दिया, पाथ सम से। पाथ सम की वैल्यू क्या है, जीरो इनिशियली। नाउ जीरो इंटू 10, जो भी मेरे पास करंट नोड मिलती रहेगी पाथ के दो, जो देखो जो भी मैं पाथ को ट्रैवर्स करूंगा, उस पाथ को ट्रैवर्स करते वक्त जो जो मेरे को नोड मिलती रहेगी उससे मैं मल्टीप्लाई, मतलब उसको मैं ऐड करता रहूंगा अपने पाथ सम में, और पाथ सम को अपडेट करता रहूंगा, राइट। तो एज ऑफ नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम माई पाथ सम इज जीरो। तो मेरा जो पहला स्टेप रन होगा वो ये वाला स्टेप रन होगा। अब जरा आप इसमें कैलकुलेशन करिए एक बार, पाथ सम इंटू 10 मीन जीरो इंटू 10 प्लस 3, जीरो इंटू 10 प्लस 3, पाथ सम क्या बन जाएगा, तो पाथ सम मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे 3। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस फंक्शन से, इस रूट नोड से एक लेफ्ट साइड एक फंक्शन कॉल करूंगा, और जिसको मैं अपना पाथ सम अपडेट करके दे दूंगा कि दिस इज माई पाथ सम। एज ऑफ नाउ मेरा पाथ सम ये 3 है। ठीक है, अब ये तो मेरे पास था एक्चुअल रूट नोड, बट क्योंकि इस रूट नोड ने अपने लेफ्ट में फंक्शन कॉल किया है, बिकॉज डीएफएस कॉल आपको पता है, पहले हम लेफ्ट साइड के सारे फंक्शन कॉल्स कंप्लीट करते हैं, देन हम राइट में मूव करते हैं। ठीक है, तो वही सेम प्रोसीजर हम यहाँ भी करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो अभी क्या है कि मैंने रूट से रूट के लेफ्ट में फंक्शन कॉल कर दिया है। अब देखो इस 7 के पास जो पाथ सम है वो 3 है, इस 7 के पास जो पाथ सम की वैल्यू है वो है 3 है। तो अब देखो आप इस लाइन को फिर से रन करिए, क्या होगा, 3 इंटू 10 मीन्स 30, एंड 30 प्लस करंट रूट का डेटा, करंट रूट कौन है भी 7 है, तो 30 प्लस रूट डेटा मीन 7, तो कितना बन जाएगा 37। तो आप इस अपडेटेड पाथ सम को नीचे पास करोगे, मीन्स आप यहाँ पे पास करोगे 37। ठीक है, एंड अब आपके पास ये फंक्शन कॉल हो जाएगा इसके भी लेफ्ट पे, 7 का जो लेफ्ट है उस पर आप फंक्शन कॉल करने की कोशिश कर रहे हो। नाउ 9 पे जब आपने फंक्शन कॉल किया 9 वाली नोड पे, तो इसके पास जो पाथ सम वैल्यू रिसीव हो रही है वो 37 रिसीव हो रही है। तो मीन्स अब 9 को क्या करना है, 9 को अपने लेफ्ट में फिर से फंक्शन कॉल करना है विद दी अपडेटेड वैल्यू। तो ये क्या करेगा, ये नीचे पाथ सम को देगा नल के पास, जो कि यहाँ पे एक नल नोड होगी, राइट, नल नोड होगी यहाँ पे एक, तो ये पाथ सम इसको वैल्यू देगा। तो नाउ दिस विल कैलकुलेट 37 इंटू 10 मीन्स 370 प्लस 9, तो इट विल बिकम 379, और यहाँ पे ये फंक्शन कॉल कर देगा नल पे। अब देखो जब आपने नल पे फंक्शन कॉल किया तो हम ये चीज़ रखेंगे कि अगर पाथ सम कैलकुलेट करते करते अगर आप किसी ऐसी नोड पे आ जाते हो जिसका लेफ्ट एंड राइट नल है, ठीक है, आप पहले पाथ सम कैलकुलेट कर लोगे फॉर दी करंट नोड। ठीक है, और अगर आप नल पे आ जाते हो, ठीक है, या फिर आप यूं कहो कि देखो मींस बिफोर कैलकुलेटिंग दिस नल फंक्शन आपने पाथ फंक्शन कैलकुलेट किया। देखो जिस भी नोड के लिए आप पाथ फंक्शन कैलकुलेट करते हो फिर आप चेक भी करते हो कि इफ ये जो आपने रूट नोड के लिए पाथ फंक्शन कैलकुलेट करा है क्या इसका लेफ्ट नल है। अगर इसका लेफ्ट भी नल है एंड अगर इसका राइट भी नल है, अगर दोनों ही वैल्यूज नल है, ठीक है, दोनों ही अगर वैल्यूज नल है, तो आप यहाँ से जो पाथ सम आपने कैलकुलेट करा आप इसको रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, आप इसको रिटर्न कर सकते हो। तो मीन्स यहाँ पे इस नल पे फंक्शन कॉल करने से पहले आपने पहले पाथ फंक्शन कैलकुलेट किया, पाथ सम कैलकुलेट किया फॉर दिस नोड नंबर 9, और फिर आपने चेक भी किया कि क्या इस रूट का डेटा मीन्स जो करंट रूट थी आपके पास, करंट रूट अब कौन बन गई थी आपके पास, 9 बन गई थी, राइट। तो अब आप चेक करोगे पाथ सम कैलकुलेट करने के बाद फॉर द करंट नोड पाथ सम आपने कैलकुलेट किया विच इज कमिंग आउट टू बी एज 379, एंड 379 को कैलकुलेट करने के बाद आप चेक कर रहे हो कि इस 9 के लिए क्या रूट का लेफ्ट, इस 9 का जो लेफ्ट है क्या वो नल है, एंड इस 9 का जो राइट है वो नल है। अगर नल है तो आप यहीं से क्या रिटर्न कर सकते हो, आप यहीं से ये वाला पाथ सम रिटर्न कर दो। तो ये पाथ सम रिटर्न हो जाएगा, किसको रिटर्न होगा, ये पाथ सम यहाँ से रिटर्न होगा टू दी प्रीवियस नोड। ठीक है, तो इस तरीके से हम पाथ सम यहाँ से रिटर्न करेंगे। ठीक, आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, पाथ सम रिटर्न किया। अब एक्चुअल में जो इस 3 को यहाँ से पाथ फंक्शन मिलेगा, ये 9 जो लास्ट में 3 को जो देखो 9 7 को भेजेगा पाथ सम, 7 3 को भेजेगा, तो एक्चुअल में इस 3 के पास जो लेफ्ट साइड से, मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, राइट, इस 3 के पास जो लेफ्ट साइड से जो सम मिलेगा दैट विल कमिंग आउट टू बी एज 379। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से 3 को जो मिला वो मिला 379 एज इन सम, पूरे पाथ का सम मिला 379, मतलब पाथ का सम नहीं, एक्चुअली पाथ से जो डिजिट बनी वो मिला 379, वो डिजिट मिली 379। अब देखो अब ये 3 अपने राइट में भी सेम चीज़ को परफॉर्म करेगा। कैसे परफॉर्म करेगा, देखो अब रूट नोड फिर से कौन बन गई आपके पास, 3 बन गई।
ठीक है, क्योंकि रिवर्स कॉल होता है ना, बैक ट्रैक होता है, पहले पूरा लेफ्ट कंप्लीट होता है, फिर लेफ्ट से वापस आप रूट पे जाते हो, फिर आप रूट से राइट की तरफ जाने की कोशिश करते हो। आई थिंक आपको डीएफएस याद होगा, याद करिए प्री ऑर्डर में क्या करते थे, प्री ऑर्डर में पहले पूरा लेफ्ट कवर करते थे, लेफ्ट कवर करके फिर पूरा नोड पे जाते थे, रूट नोड पे, और फिर राइट में जाते थे, इस तरीके से करते थे, राइट। तो अब हम फिर से वापस से रूट नोड पे आ गए, पूरा लेफ्ट पार्ट को कवर करके। नल वाले नोड्स को हमने कंसिडर नहीं करा है, मतलब इनके राइट में नल्स भी होंगे, बट उनको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी नल तरफ जाओगे तो वहाँ से आपको 0 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो वो आई थिंक वो एक सिंपल सा बेस केस है, ठीक है। चलिए, अब क्या है कि आप फिर से रूट नोड पे आ गए हो, ठीक है, आप फिर से रूट नोड पे आ गए हो और पाथ सम की वैल्यू आपके पास 0 है, तो आप फिर से इस 1 को भेजोगे, क्या भेजोगे कि यार एक काम कर भाई 1, मैं 0 इंटू 3 सॉरी 0 इंटू 10 प्लस 3 करके तेरे को दे रहा हूँ, मीन्स मैं तेरे को 3 वैल्यू दे रहा हूँ और तुझ पे मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब तू मुझे एक काम करना, दोनों अपने पाथ का सम मेरे को भेज देना, ठीक है, जो भी तेरे पास दोनों पाथ का सम आएगा वो तुम मेरे को भेज देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 1 के पास वो है 3, ठीक है। अब इस 1 पे कैलकुलेट होगा, अब इस 1 पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब इस 1 पे कैलकुलेट होगा, क्या कैलकुलेट होगा कि यार जब ये 1 इसको भेजेगा पाथ सम, यहाँ पे कितना भेजेगा, ये जो भेजेगा इसको 4 को, ये कितना भेजेगा पाथ सम, तो ये भेजेगा 3 इंटू 1 मीन्स 3 इंटू 10 मीन्स 30 एंड 30 प्लस 1 31, तो ये भेजेगा इसको 31। अब तुम आ गए नोड नंबर 4 पे, ठीक है। जब आपने नोड नंबर 4 पे आ गए तो अब आप फिर से पीएस की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, पीएस की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वो कैसे कैलकुलेट होगी, 31 इंटू 10, 31 इंटू 10 मीन्स 310 एंड 310 प्लस 4, तो ये दे देगा आपको 314, ठीक है, ये दे देगा आपको 314, मीन्स आपने इस रूट से जो कैलकुलेट करी यहाँ पे वो वैल्यू आपको मिली 314। अब आप ये बताइए, इस जो 4 नोड है इसका लेफ्ट एंड राइट दोनों नल है कि नहीं, इसका 4 नोड का लेफ्ट एंड राइट दोनों नल है कि नहीं, यस, इसके दोनों नल है। इट मीन्स ये 4 जो इस 1 को वैल्यू रिटर्न करने वाला है वो कितनी रिटर्न करने वाला है, 314 रिटर्न करेगा, ठीक है, 314 रिटर्न करेगा। चलिए अब वापस से काम करते हैं, वापस से इसी नोड पे आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 ने अपना लेफ्ट तो कवर कर लिया, बट अभी 1 को अपना राइट भी कवर करना है, राइट। तो अब क्या करेगा ये 1 बोलेगा 5 से कि यार देख मेरे पास पाथ सम अभी 3 है, मैं अपनी वैल्यू को ऐड करके दे रहा हूँ, कैसे, 3 इंटू 10 प्लस 1, 3 इंटू 10 प्लस 1 मीन्स 31, तो ये इसको भी 31 दे देगा और इस पे कर देगा फंक्शन कॉल 5 वाली नोड पे, ठीक है। अब हम 5 पे आ गए, अब 5 के लिए भी फिर से पाथ सम कैलकुलेट करेंगे, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, पाथ सम इज इक्वल टू 31 इंटू 10 मीन्स 310 एंड प्लस 5, तो ये आ जाएगा मेरे पास 315, ठीक है। तो अब क्योंकि 5 वाली नोड पे जब आप खड़े हो तो इसका लेफ्ट एंड राइट नल है, तो आप यहाँ से रिटर्न करोगे पाथ सम, तो ये जो रिटर्न होगा एक्चुअल में वो इसको रिटर्न होगा, इस 1 को। तो बेसिकली अब हम करना क्या है, मैं इसके कंक्लूजन पे आता हूँ। तो जब भी आप किसी नोड को रिटर्न करते हो पाथ सम, तो जब आप किसी ऐसी नोड पे पहुंच गए जिसका लेफ्ट एंड राइट दोनों नल है, तो आपने सीधा सीधा पाथ सम रिटर्न किया। लेकिन जब आप इस 1 वाली नोड पे थे, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, जब आप इस 1 वाली नोड पे थे लेट्स से, तो 1 पे जब आपने इन दोनों फंक्शंस को कॉल किया लेफ्ट में और राइट में, तो एक्चुअल में इन दोनों का सम आप कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। मीन्स आपने कुछ ऐसा लिखा होगा कि लेट्स से अगर मैं फंक्शन का नाम लेट्स से सोल्व लिखता हूँ, सोल्व, तो आपने जब सोल्व फंक्शन कॉल किया होगा तो बेसिकली ये भेजा होगा कि भाई रूट डॉट लेफ्ट और करंट पाथ सम प्लस सोल्व फंक्शन रूट डॉट राइट एंड करंट पाथ सम। देखो जब आपने इस 1 से 4 पे फंक्शन कॉल किया था, तो आपने इसको पाथ सम कितना भेजा था, 31 भेजा था कि नहीं भेजा था, 31 भेजा था, तो वो 31 वैल्यू यहाँ पे भी भेजी थी आपने। एंड जब आपने इस 1 से 5 पे फंक्शन कॉल किया था राइट साइड में, तब भी आपने इस फंक्शन को पाथ सम की वैल्यू कितनी भेजी थी, 31, मीन्स अपनी वैल्यू को इंक्लूड करके भेजा था, ठीक है। तो इस 1 पे जो एक्चुअल में आंसर रिसीव होना चाहिए वो इस 314 वैल्यू का, वो इस 314 वैल्यू का और इस 315 वैल्यू का, यहाँ से जो आपको 315 वैल्यू रिसीव हो रही है 315, इन दोनों का आपको सम रिटर्न करना है, ठीक है। तो मीन्स इस 1 करंट नोड के लिए अगर 1 का लेफ्ट और राइट नल नहीं है, तो आप जो पाथ सम रिटर्न करोगे वो इन दोनों का सम रिटर्न करोगे, आपको इस पाथ से जो वैल्यू मिलेगी और इस पाथ से जो वैल्यू मिलेगी। मीन्स 314 प्लस 315 कितना रिटर्न करेगा, 314 प्लस 315 मीन्स ये कितना हो जाएगा आपके पास, सो दिस विल बी 629, तो ये हो जाएगा आपके पास 629, इन दोनों का सम। मीन्स आपने जो लेफ्ट साइड से वैल्यू रिटर्न करी इस 3 को, वो कितनी रिटर्न करी, 629 आपने इस वैल्यू को रिटर्न किया, ठीक है। और 3 के लेफ्ट से कितनी वैल्यू आ रही थी, 379,
ठीक है, 3 के राइट से जो वैल्यू आई वो आई 629, 3 के लेफ्ट से जो वैल्यू आई वो आई 379। इट मीन्स आप फाइनली क्या कर सकते हो, 379 प्लस 629, आप इन दोनों का सम कैलकुलेट कर सकते हो। सो यू आर गेटिंग फाइनली 1008 एज एन आंसर। ठीक है, तो देखो सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा सोचना, मतलब सोचना तो पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे मैंने एक बार इटरेट किया, आप भी एक बार ऐसे प्लीज़ इटरेट करने की कोशिश करिए। ठीक है, इस वीडियो को फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो बीएफएस से कहीं ज़्यादा थोड़ा टफ है डीएफएस, पर एक बार अगर आपको डीएफएस की इंट्यूशन समझ में आ गई ना कि कैसे रिकर्जन काम करता है, तो आप आराम से इसको सीख सकते हो। ठीक है, तो मेरी हाई रिकमेंडेशन है आपको ये कि आप इस एग्जाम्पल को फिर से एक बार देखें पहले, और फिर एक किसी दूसरे ट्री पे आप खुद से इसको करने की कोशिश करिए। ठीक है, बहुत आसान है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ वेरी ईजी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, हर फंक्शन कॉल में पाथ सम नाम का वेरिएबल पास करते करते जाना है, और आपको ये दो कंडीशन लिख देनी है, एक ये वाली और एक ये वाली, दैट्स इट। कि अगर रूट के नल हो जाते तो आप सिंपली रिटर्न कर दो, अदरवाइज एल्स कंडीशन में आप ये दो फंक्शंस को कॉल कर दो प्लस करके, दैट्स इट, दैट्स दी ओनली इट। ठीक है, बहुत आसान सा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस कोड। ठीक है, इसका कोड देखने की एक बार कोशिश करते हैं। ठीक है, सो कोड बहुत आसान है इसका। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, देखो आपको सिर्फ रूट नोड मिलेगी, पाथ सम रूट नोड, हमें कोई कुछ और नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ ट्री की रूट नोड दी जाएगी। ठीक है, अब हमें सिर्फ उस ट्री के अंदर जितने भी पाथ्स है उनसे जो डिजिट फॉर्म हो रही है उनका सम रिटर्न करना है, दैट्स इट। तो हमें तो सिर्फ रूट नोड मिलेगी। मींस एक्चुअल जो हमारा फंक्शन है वो है ये वाला, पब्लिक स्टैटिक इंट फाइंड सम पाथ नंबर, जिसको सिर्फ एक रूट नोड मिल रही है, दैट्स इट। अब देखो आप समझने की कोशिश करिएगा, जब भी डीएफएस फंक्शन कॉल्स के अंदर, मींस रिकर्सिव कॉल्स के अंदर, हमें कुछ ऐसा कॉमन वेरिएबल भेजना पड़ता है जिसकी बार बार वैल्यू अपडेट हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस में क्या था, पाथ सम एक ऐसा वेरिएबल था जिसको मैं हर फंक्शन कॉल के अंदर भेज रहा था। 3 से मैंने एक फंक्शन कॉल किया 7 पे, तो मैंने पाथ सम की अपडेट वैल्यू करके भेजी। फिर मैंने 7 से जब 9 पे फंक्शन कॉल किया तो मैंने पाथ सम की एक अपडेट वैल्यू करके भेजी 37। देन फिर मैंने जब मेरे पास 9 पे फंक्शन कॉल हुआ तो 9 के अंदर मैंने इस वैल्यू को अपडेट किया 379 को, है ना। तो इस तरीके से जब भी मैं किसी फंक्शन के अंदर किसी फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं कुछ कॉमन वेरिएबल भेजना चाहता हूँ जिसकी बार बार वैल्यू अपडेट हो रही है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस वैल्यू को भेजना पड़ेगा उस फंक्शन के अंदर, अदरवाइज मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है उसको बार बार अपडेट करने का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा जो एक्चुअल फंक्शन आपके पास डिमांडेड था कि जिसको आप रूट नोड भेज रहे थे, उससे आंसर कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको हम अंदर से इंटरनली हम उसको पाथ सम की वैल्यू नहीं भेज सकते थे, हम उसको इंटरनली पाथ सम की वैल्यू नहीं भेज सकते थे। तो हमने क्या किया, हमने एक डिफरेंट फंक्शन बनाया, ठीक है, जिसको हमने इनिशियल पाथ 0 दिया, इनिशियल पाथ सम 0 दिया। याद करिए मैंने पाथ सम इनिशियली 0 दिया। ठीक है, तो फाइंड पाथ सम नाम का एक मैंने फिर से फंक्शन बनाया। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि ये फंक्शन मेरे पास आंसर मेरा कैलकुलेट करके ला करके दे देगा। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या किया, इस फंक्शन के अंदर से तो ये वाला फंक्शन रिटर्न कर दिया कि ये जो फंक्शन आंसर ला करके देगा वही मेरे पास आंसर होगा। अब ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखो यार, मैं इसी फंक्शन इसी के अंदर समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से। C++ एंड पाइथन का कोड एकदम इक्विवेलेंट है, बस फंक्शंस कॉल जिस तरीके से सिंटेक्स होता है वहीं पे ऐसे लिखा है, अदरवाइज एकदम सेम है। तो आप यहीं पे समझ लीजिए प्लीज़। ठीक है, तो बाकी मैं कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, अदरवाइज वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो अब देखो, जब हमें रूट नोड मिली और हमें पाथ सम लेट से इनिशियली 0 मिला, तो आप क्या करो, आप चेक करो कि रूट क्या नल के बराबर है। देखो मैं एक काम करता हूँ, एक ट्री को कंसिडर करता हूँ, लेट से 3 एंड लेट से यहाँ पे 1 एंड लेट से यहाँ पे 2, एक ये छोटा सा मैंने ट्री कंसिडर किया। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आने वाला चाहिए मेरे पास वो 31 एंड 32 का सम आना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, 3 एंड 3 63 मेरे पास इसका आंसर आना चाहिए। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 63 विल बी द आंसर फॉर दिस टेस्ट केस। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस 3 नोड पे हूँ और इस 3 नोड पे पाथ सम की जो वैल्यू है वो मेरे पास 0 है। ठीक है, तो मैंने चेक किया, मैं अभी करंटली किस पे हूँ, मैं इस 3 नोड पे हूँ, मैं इस 3 नोड पे हूँ। ठीक है, मैं करंटली इस 3 नोड पे हूँ। नाउ आई एम चेकिंग, मैं क्या चेक कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना कि क्या ये वाली जो रूट नोड है क्या ये नल है। बताइए क्या 3 नल है? नहीं है, ये नल नहीं है। इट मीन्स ये कंडीशन नहीं रन होगी। तो सेकंड स्टेप रन करते हैं, कह रहा है कि पाथ सम अपडेट करो। कैसे अपडेट करो कि पाथ सम मीन्स 0 इंटू 10, पाथ सम की वैल्यू इनिशियली 0 है, तो 0 इंटू 10 इज 0 प्लस रूट डॉट डेटा, करंट रूट कौन है 3, तो प्लस 3 कर रहे हो। मीन्स पाथ सम की जो वैल्यू बन गई है, अब जो पाथ सम के पास आपके पास जो वैल्यू बन गई है वो कितनी बन गई है, 3 बन गई है। तो पाथ सम की वैल्यू के अंदर वैल्यू बन गई है 3, पाथ सम की वेरिएबल की वैल्यू बन गई है 3। ठीक है, और अब आप चेक कर रहे हो, ठीक है, पाथ सम आपने कैलकुलेट करा, ठीक है, बट अब आप ये भी चेक करो कि जिस करंट नोड पे आप अभी हो 3 पे जब आप हो, तो क्या इसका लेफ्ट और राइट नल है। अगर देखो ऐसा क्यों चेक कर रहे हैं, ऐसा इसलिए चेक कर रहे हैं कि कहीं ये लीफ नोड तो नहीं है,
कहीं ये लीफ नोड तो नहीं है, तो क्योंकि ये लीफ नोड तो है नहीं, तो मीन्स अगर ये लीफ नोड नहीं है तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। तो फिर क्या चलेगा, तो ये कह रहा है कि आप लेफ्ट साइड से मेरे पास पाथ सम कैलकुलेट मतलब पाथ बना करके ले आओ, जो भी पाथ है, पाथ से जो वैल्यू बन रही है 3 1 इस तरीके से, और आप राइट साइड से मेरे पास बना करके ले आओ, जो भी दोनों से तरफ से मेरे को आंसर मिलेगा आप उनका सम कर देना। मीन्स ये जो इसको वैल्यू रिटर्न करेगा पाथ की वैल्यू, और ये जो भी इसको पाथ की वैल्यू रिटर्न करेगा, इन दोनों का सम हम इस एक्चुअल में इन दोनों का सम हम एक्चुअल में रिटर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो इसने क्या किया। अब देखो पहले लेफ्ट फंक्शन कॉल होगा, जब लेफ्ट फंक्शन कॉल हुआ इट मीन्स अब इस 3 ने इस पे 1 पे कॉल किया। ठीक है, इस 1 पे कॉल किया, और पाथ सम की वैल्यू कितनी बन चुकी, 3 बन चुकी। पाथ सम की वैल्यू 3 बन चुकी, देखिए ध्यान से, पाथ सम 3 बन चुका था 3 वाली फंक्शन कॉल के। तो अब आप इस पे 1 वाली नोड पे फंक्शन कॉल कर रहे हो और पाथ सम आप इसको भेज रहे हो 3। ठीक है, तो इट मीन्स अब जो ऊपर आपके पास रिसीव होगा, मीन्स अब जो यहाँ पे नोड हुए वो नोड है आपके पास नोड नंबर 1 और पाथ सम की वैल्यू है 3। अब आप फिर से चेक करोगे कि जो नोड नंबर 1 है क्या वो नल है, नहीं वो नल तो नहीं है, इट मीन्स ये कंडीशन फेल। सेकंड वाले स्टेटमेंट रन करते हैं। सेकंड वाला स्टेटमेंट कहता है कि पाथ सम को अपडेट करो। पाथ सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 10 प्लस रूट डॉट डेटा। तो जब आप मेरे को बताइए पाथ सम हम लिख रहे हैं 3 × 10 प्लस 1, तो ये कितना बन जाएगा, 31 बनेगा कि नहीं बनेगा, 31। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू बन गई 31, तो इट मीन्स पाथ सम की वैल्यू लास्ट में कितनी बन गई, 31। अब आप चेक कर रहे हो कि जिस करंट नोड पे आप हो क्या उसका लेफ्ट और राइट दोनों नल है। अगर उसका लेफ्ट एंड राइट दोनों नल है इट मीन्स आप यहाँ से रिटर्न कर दो कि पाथ सम की वैल्यू, पाथ सम की वैल्यू कितनी बन चुकी, 31। इसका मतलब यू आर गोइंग टू रिटर्न 31 टू दिस फंक्शन जिसने इसको कॉल किया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। मीन्स लेफ्ट वाला फंक्शन पूरा कॉल खत्म, जो आपने 3 वाली नोड से लेफ्ट पे कॉल किया था, ये फंक्शन की वैल्यू आ गई है 31। इस फंक्शन की वैल्यू आप कैलकुलेट करके ले आए हो 31। अब हमें राइट वाला फंक्शन भी कॉल करना है। ठीक है, तो राइट वाला फंक्शन कॉल करते हैं। नाउ लेट्स कैलकुलेट द राइट वाला फंक्शन। तो राइट वाला फंक्शन मीन्स 3 से आप 2 पे कॉल करोगे, तो नाउ दिस इज रूट जो है रूट डॉट राइट जो है वो 2 है, और पाथ सम आप इसको कितना भेजोगे, पाथ सम बताइए कितना भेजोगे, पाथ सम कितना भेजोगे, कितना हो चुका था पाथ लास्ट टाइम पे यहाँ पे नोड नंबर 3 के लिए पाथ सम कितना हो चुका था, 3 हो चुका था, नहीं हो चुका था, 0 × 10 प्लस 3, तो 3 हो चुका था। मीन्स आप इसको पाथ सम भेज रहे हो यहाँ से 3, मीन्स एक नया फंक्शन कॉल हो रहा है जहाँ पे रूट नोड मिल रही है 2 और पाथ सम मिल रहा है 3। तो अब आप इसको चेक करने की कोशिश करते देखते क्या होता है। ठीक है, तो जब आपने चेक किया तो बेसिकली आपने चेक किया कि क्या ये रूट नोड नल है, नहीं नल तो नहीं है, तो आप पाथ सम कैलकुलेट करिए। अब करंट पाथ से कितना है 3, तो 3 × 10 कितना होगा 30 प्लस करंट नोड कितनी है 2, भाई करंट नोड कितनी आपके पास 2 है ना, तो कितना हो जाएगा, इस लाइन में आपको आंसर मिला 32। अब देखिए आप नेक्स्ट लाइन को इटरेट करोगे, क्या करोगे कि क्या रूट का लेफ्ट नल है, यस इस नोड का लेफ्ट नल है एंड इस नोड का राइट भी नल है। अगर नल है तो यहीं से पाथ सम की वैल्यू रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे पाथ सम की वैल्यू कितनी हो चुकी 32, यहाँ पे पाथ सम की वैल्यू कितनी हो चुकी थी 31। ठीक है, पाथ की वैल्यू इसको, पाथ सम की वैल्यू इसको 3 मिली थी, 3 से इसने 32 फॉर्म किया, तो ये जो यहाँ से रिटर्न करेगा ये इसको रिटर्न करेगा 32। ठीक है, अब देखो मीन्स जो एक्चुअल में जो सबसे स्टार्टिंग में फंक्शन कॉल हुआ था नोड नंबर 3 पे, तो पाथ सम 0 से हमने कॉल किया था, तो यहाँ पे सम की वैल्यू 3 हुई थी कॉल, तो इसने 2 फंक्शंस कॉल किए थे लेफ्ट में एंड राइट में, तो लेफ्ट से तो इसको आंसर मिला 31 एंड राइट से इसको आंसर मिला 32। तो अब इन दोनों का जो सम होगा वो इसको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में 31 प्लस 32 कितना हो जाएगा 63, तो 63 रिटर्न होगा फाइनली किसको, यहाँ पे जो फंक्शन आपने कॉल किया है। मीन्स इन दोनों का सम होकर के इसको रिटर्न हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे एक फाइनली वैल्यू आ गई 63, तो ये 63 विल बी रिटर्न टू दिस फंक्शन। तो फाइनली हमारे पास 63 आंसर में रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट वॉज द इंट्यूशन। देखो प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफिकल्ट है आई नो, बट पॉइंट हियर इज कि अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लोगे ना, रिवाइज कर लोगे अच्छे से, तो यू विल डेफिनेटली गेट इट। और देखो यार आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं छोड़ने का, ठीक है, आपको करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो प्लीज़ ट्राई टू डू दिस, बहुत आसान है। मैं बाकी कोड्स नहीं दिखा रहा हूँ, बाकी कोड्स सब डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लीजिए, सब मिल जाएंगे। एक्जैक्टली सेम कोड है यार, बिल्कुल सेम कोड लिखा है, तो बार बार क्या दिखाऊँ उसका। मैं तो एकदम पैटर्न में पढ़ा रहा हूँ आपको। स्टार्टिंग वाला कोड आप अगर समझ जाओगे तो बाकी सारे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आई थिंक बढ़िया थी प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आएगा प्रॉपर। ठीक है, एंड बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।